ओम शांति। आज के बाबार 19/12/2020 मुरली। आज के मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे তোমরা জন্ম জন্মান্তর দাপর যুগ থেকে ভক্তি মার্গে আমাকে ডেকে এসেছো এবং প্রতিজ্ঞা করেছো বাবা তুমি যখন আসবে তখন তোমার ছাড়া আমরা আর কাউকে স্মরণ করব না, তোমার উপরে সম্পূর্ণ বলিহার হয়ে যাব। তো আমি এসেছি তোমাদেরকে মনে করাতে, এবার তোমরা আমার উপরে সম্পূর্ণ বলিহার হও। তারপরে বাবা বললেন যে তোমরা ভক্তি মার্গে কখনো এটা বলোনি যে বাবা এসে আমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণ বানাও, তোমরা সবসময় এটাই বলে ডেকে এসেছো যে বাবা আসো আমাদেরকে পাবন বানাও, আমরা পতিত হয়ে গেছি আমাদেরকে পাবন বানাও, বারবার তোমরা এটাই বলে ডেকেছো। বাবা বলছেন যে তোমরা তো জানতেই না যে আমি কে, আমার পরিচয় তো তোমরা জানতে না, তাও তোমরা আমাকে স্মরণ করতে। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে দেবী দেবতা পূজনীয় তাদেরকেই বলা হবে যারা কখনো কোনো দেহধারীকে মনে করবে না বা স্মরণ করবে না বা কারো কাছে কাউকে নমন করবে না। তো যেমন একমাত্র সত্যযুগের দেবী দেবতা তারা না নিরাকার পরমাত্মাকে পুজো করে না কোনো দেবী দেবতাকে পুজো করে, তারা তো নিজেরাই শ্রেষ্ঠ। তো বাবা বলছেন যেমন সাধু সন্ন্যাসীকে মানুষ খুব সম্মান করে, যেহেতু তারা সংসার ছেড়ে পবিত্র থাকছে তো তাদেরকে সম্মান করে, কিন্তু তারা পূজনীয় নয়, তাদেরকে পুজো করা হয় না। তো বাবা বলছেন যেমন প্রেসিডেন্টকে বা প্রধানমন্ত্রীকে সবাই সম্মান করে কিন্তু পুজো করে না, তো সেরকম সত্যযুগে যারা বিশ্ব মহারাজন শ্রী নারায়ণ বা বিশ্ব মহারাজন শ্রী লক্ষ্মী তাদেরকে সবাই খুব সম্মান করবে কিন্তু পুজো করবে না। তো দেবী দেবতা একমাত্র তাদেরকেই বলা হবে যারা সম্পূর্ণভাবে নিজেরাই পূজনীয়, তারা কখনো কাউকে পুজো করে না। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा दिलाने। বাবা বলছেন যে তোমরাই আমার সঙ্গে প্রমিস করেছিলে যে বাবা তুমি যখন এই ধরাধামে আসবে তখন আমরা তোমার উপরে পূর্ণভাবে বলিহার হয়ে যাব। তো এখন আমি এসেছি তোমাকে সেই প্রমিসটা মনে করাতে, তো তোমরা এখন পূর্ণভাবে আমার উপরে বলিহার হয়ে যাও। আজকের প্রশ্ন হচ্ছে किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। বলছে দেবী দেবতাদের মধ্যে এমন কি একটা মুখ্য বিশেষতা আছে তার কারণেই তাদেরকে দেবতা বলা হবে বা পূজনীয় বলা হবে। उत्तरे बाबा बोलছেন देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते। বাবা বলছেন যে দেবী দেবতারাই হচ্ছেন যে যারা কাউকে স্মরণ করে না, না बाप को याद करते ना किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। সত্যযুগে কোনো ভক্তি ছিল না, এই জন্য তারা না বাবাকে স্মরণ করতো না কোনো চিত্রকে তারা স্মরণ করে, এই জন্য তাদেরকে পূজ্য বলা হবে। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं है। তো এত সুখ থাকে সত্যযুগে যে দেবী দেবতাদেরকে কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন থাকে না। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। তোমরা এক বাবার ইয়াদে এত পূজ্য পাবন হয়ে গেছো যে আর কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন থাকে না। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाबा বলছেন যে আমি একবারই সঙ্গম যুগে আসছি, কল্পের মধ্যে একবার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আমি আসি। ऐसे और कोई कह न सके, सारे कल्प के सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं हैं। বলছেন যে সঙ্গম যুগ ছাড়া আমি অন্য কোনো যুগে আসি না, बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है
और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है। বলছে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করা এটা অনেক বাচ্চাদের খুব কঠিন মনে হয়। है बहुत सहज परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। বাবা বলছেন আছে খুবই সহজ কিন্তু বুদ্ধিতে ঠিক মতন বাচ্চারা এখনো বসাতে পারেনি। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। বলছে কোনো কোনো স্কুলে কি হয় যে স্টুডেন্ট 12 মাস পড়ছে তাও বুদ্ধিতে তার পড়াশোনা কিছুতেই ঢুকছে না। तो यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं फिर भी कोई को धारणा होती है कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माँ मेकम याद करो और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाबूजी बाबा ही बोलते पारेन जे हे आत्मा सब किछु भूले माँ मेकम स्मरण करो, एटा अन्य केउ बोलते पारे ना। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। बाबा বলছেন তোমরাই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, অন্য কেউ এই জ্ঞান ধারণই করছে না। प्रजापिता ब्रह्मा के तो मुख्य वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। बाबा বলছেন তোমরা प्रजापिता ब्रह्मा वंशी मुख वंशावली ब्राह्मण তোমরা ये ज्ञान के बुझते पारछो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने यह संगम पर ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं हैं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। बाबा বলছেন অন্য ধর্মের আত্মারা তারা এই 5টা বর্ণে আসে না, যেমন সত্যযুগে দেবতা, ত্রেতাতে ক্ষত্রিয়, দাপরে বৈশ্য, কলিতে শূদ্র আর সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণ। তো এই 5টা বর্ণে ভারতীয়রাই আসছে, আদি সনাতন দেবী দেবতা কুলের আত্মারাই আসছে, অন্য ধর্মের আত্মারা এই বর্ণে আসছে না। तो ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। বলছেন ব্রাহ্মণরাই ভারতবাসী যারা তারাই ব্রাহ্মণ হচ্ছেন, এই জন্য বাবাকে ভারতবর্ষেই আসতে হচ্ছে। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं फिर तुम देवता बनते हो। वहाँ फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। बाबा বলছেন যে ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো পুরুষার্থ করার দরকার নেই, আগে তো তুমি দেবতা হবে, সত্যযুগে যাবে, তারপরে তুমি ন্যাচারালি ত্রেতা যুগে আসবে। তো যেই তোমরা ত্রেতা যুগে আসবে তখন তোমাদের বর্ণ হয়ে যাবে ক্ষত্রিয়। তো ক্ষত্রিয় হওয়ার জন্য স্পেশাল পুরুষার্থ করা দরকার নেই, তোমরা এমনি আসবে। তো বাবা বলছে আসল পুরুষার্থ হচ্ছে যে সত্যযুগে আমরা দেবতা বর্ণে কি করে উঁচু পদ পাবো, এটা হচ্ছে পুরুষার্থ। तो तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सत्युग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। बाबा বলছেন আমি যুগে যুগে আসি না, আমি কল্পে একবারই আসছি संगम যুগে। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ।
ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ, यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बाबा बोलছেন যে ব্রহ্মার নাম আমি দিয়েছি, তার লৌকিক মাতা পিতা তাকে ব্রহ্মা নাম দেয়নি। ব্রহ্মা বাবার লৌকিক নাম ছিল দাদা লেখরাজ কৃপলানি। তো ওনার যখন 60 বছর বয়স হলো আর শিব বাবা যখন ওনার মধ্যে প্রবেশ করলেন, তারপরে ওনাকে অলৌকিক নাম দিলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তো এটা ব্রহ্মা শব্দটা শিব বাবা দ্বারা দেওয়া। तो यह कोई इनका अपना नाम नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था। उनार लौकिक जन्मेर नाम होच्छे लेखराज, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है, यह तो घर में ही रहते हैं। बाबा बोलছেন যে সন্ন্যাসীরা যখন ঘর বার ছেড়ে চলে যায়, সন্ন্যাস ধর্ম যখন ধারণ করে তখন তাদের নাম পরিবর্তন হয়। কিন্তু ব্রহ্মা বাবা তো উনি কোথাও বাইরে চলে গেলেন না, উনি তো সংসারেই ছিলেন। इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। बाबा बोलছেন যে এটা না যে তোমরা জন্ম থেকেই পবিত্র আছো, বাবা এখন তোমাদেরকে পবিত্র থাকার শিক্ষা দিচ্ছেন। कैसे पवित्र बने, पवित्र होवार जुक्तिटा की सेटा बाबा এখন বোঝাচ্ছেন। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। আছে না, भक्ति मार्गे একজনও पूज्य होते पारे ना। मनुष्य गुरुओं आदियों को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। বলছে সাধু সন্ন্যাসীকে মানুষ কত নমন করে এবং তাদের চরণ স্পর্শ করে, যেহেতু তারা সংসার ছেড়ে পবিত্র জীবন যাপন করে, কিন্তু তাদেরকে পূজ্য বলা হবে না। বা বলছেন পূজ্য তাদেরকেই বলা হবে যারা কখনো কাউকে স্মরণ করে না, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীরাও তো ব্রহ্মকে স্মরণ করে। तो पूज्य वह जो किसी को भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को। এখন বাবা বলছেন তোমাকে याद করতে হবে একজনকে। वह तो है भक्ति, तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बिगर तो पाठधारी हो न सके। বলছেন সত্যযুগ ত্রেতাতেও তোমরা যে শরীরটা পাবে সে শরীরের তো নাম হবে, নাম ধারিত হবে তোমরা, তবে তো তোমরা নিজের নিজের পাঠ প্লে করবে। तो कहाँ भी हो शरीर का नाम तो जरूर पड़ता है। আমরা 84টা জন্ম নিচ্ছি, তো আমাদের 84টা শরীর, 84 শরীরে আমাদের 84টা নাম তো পড়ছে। तो नाम बिगर पाठ कैसे बजाएं, तो नाम ना होले আমরা पाठ की करे प्ले করব। तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई। বলছে তোমরা ভক্তি মার্গে খুব এটা বাবার কাছে প্রার্থনা করেছিলে, বাবা তুমি আসলে আমরা তোমার উপরে পুরো অর্পণ হয়ে যাব। বাবা বলছে এখন সেটা তোমরা মনে করো যে তোমরা কি প্রতিজ্ঞা করেছো বাবার কাছে। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान चाहेंगे, कब आएंगे यह भी नहीं जानते। যে তোমরা এত আমাকে বলেছো যে বাবা তুমি আসো,
তো তোমারই হয়ে থাকবো, কিন্তু কখন যে भगवान आसबे এটা तो তোমরা जानते ही ना। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। বলছে যখন পুরো আধা কল্প ভক্তি পূর্ণ হচ্ছে তখন বাবা আসছেন। कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बिगर किसी को भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं तो याद कैसे करेंगे। বলছেন তোমরা এত বড় বড় প্রতিজ্ঞা করেছো যে নিজের দেহ কেউ ভুলে যাব আমরা, তুমি আসো তো, কিন্তু আমাকেই তো তোমরা যথার্থ রূপে জানতে না, তাহলে কি করে আমাকে याद করবে। तो अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। বলছে সত্যযুগ ত্রেতাতে কোনো ভক্তির অংশ থাকবে না, সেখানে না দেবী দেবতা অন্য কোনো দেবী দেবতাকে পুজো করবে না শিব বাবাকে স্মরণ করবে। तो अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। বলছেন সত্যযুগ নতুন দুনিয়া নতুন বাড়িতে খুশিও খুব থাকে। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। তারপরে যখন বাবা বলছে 25% যখন পুরনো হয়ে যাবে দুনিয়া তখন সেই খুশি থাকবে না। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आप के ही बनेंगे, आप से ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। অবশ্য তোমরাই প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে তোমারই কথা শুনবো, তোমাকেই দেখবো, আর কারো কথা শুনবো না, তো নিশ্চয় তোমরা পরমাত্মার জন্যই এই মহিমা করেছো। तो हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। বলছেন কেউ নিজের আত্মাকে দেখার চেষ্টা করে না, সবাই পরমাত্মাকে দেখার চেষ্টা করে। जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्यों से तेजोमय है। परमात्मार জন্যই ভক্তি মার্গে বলা হয়েছে যে তিনি 1000 সূর্য থেকে তেজোময়। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही। বলছে ভক্তি মার্গে যার ভক্তি মানুষ করে তারই দর্শন করতে চায়, नहीं तो विश्वास ही नहीं बैठेगा, नाले तार विश्वास ही आसबे ना। तो बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। বলছে আত্মাকে যদি তোমরা না বুঝতে পেরেছো তাহলে পরমাত্মাকে কি করে বুঝতে পারবে। কেন আত্মা যেমন সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু, परमात्मा आत्मार जे पिता उनियो सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु। तो आत्मा को देख ही कैसे सकते हैं, और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है आत्मा है बिंदी बहुत छोटी। বলছে আত্মা তো দেখা যায় না, কেন শরীর রূপী আবরণে আত্মা ঢাকা আছে। তো প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টি তো শরীরের দিকেই চলে যাচ্ছে, শরীরের উপরেই আটকে যাচ্ছে, শরীরের নাম রূপ রঙের উপরেই আটকে যাচ্ছে। তো আত্মাকে তো কেউ দেখার চেষ্টাও করে না। तो आत्मा है बिंदी बहुत छोटी, उनको देखें कैसे, कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से देख न सकें। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। বলছেন আত্মা এখন জ্ঞানের দিব্য নেত্র পেয়েছে, তো সেই দিব্য নেত্র দ্বারা আত্মা নিজেকে দেখতে পারছে। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी हैं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है। बस आज के बाबा पूरा आत्मार ज्ञान বোঝাচ্ছেন।
তো বাবা বলছেন তোমরা জানো যে একটা ছোট্ট সূক্ষ্ম আত্মাবিন্দির মধ্যে 84 জন্মের অবিনাশী পাঠ ভরা আছে, যেটাই আবার আমাদেরকে आगामी कल्पे रिपीट करते हबे। तो बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं। बोलছে তোমরা सर्वोत्तम कुलेर आत्मा, ब्राह्मण कुलेर आत्मा, তোমরাই देवी देवता হচ্ছো। তো তোমাদের खान पान, खावा दावा एवं चाल चलन खूबी रॉयल हुआ दरकार। यह कभी किसी की पूजा नहीं करते। বলছেন देवताराई पूज्य, तारा कखनो कारो पूजो करे ना। यह तो डबल सरताज है ना, यह कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं है, बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है। बाबा बोलছেন যে देवी देवताদেরকে সম্মান দাও, ভিতরে ভিতরে সম্মান দাও, যে এরকম আমাদেরকে হতে হবে, কিন্তু তাদেরকে পুজো করার দরকার নেই। কেন? তোমরা তো নিজেরাই পূজনীয় হচ্ছ। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है तो सब रिगार्ड रखते हैं। बाबा उदाहरण দিচ্ছেন कि যেমন প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্ট, তো সারা দেশবাসী তাদেরকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের পুজো তো করে না। ঠিক সেই রকম সত্যযুগে সবাই তার মহারাজা মহারানীকে সম্মান করবে, খুবই সম্মান করবে, কিন্তু পুজো করার নিয়ম সেখানে নেই। जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है, इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। जो तुम भूल गए हो, शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है ना, बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। বাবা বলছেন যে সত্যযুগে তোমাদের দেহের নামকরণ তো হবে, নাম না হলে তোমাদের পরিচয় কি হবে এবং তোমাদেরকে মানুষ কিভাবে ডাকবে। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं, हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে মানুষ কি বলে যে যেখানে দেখছি কৃষ্ণকেই দেখছি, তো কি করে কৃষ্ণ হলো। বা বলছে আমিও কৃষ্ণ তুমিও কৃষ্ণ। আরে তোমার নাম আলাদা, তোমার চেহারা আলাদা, তোমার পাঠ আলাদা, তোমার পরিবার আলাদা, তোমার রোল আলাদা, আর কৃষ্ণ তো 16 কলায় সম্পূর্ণ আছে, সে আলাদা। তো দুজন কি করে এক हो। तो सबका नाम कृष्ण थोड़े ही हो सकता है। বলছে সবারই নাম একই কৃষ্ণ কি করে হবে। তো जो आता सो बोलते रहते हैं, भक्ति मार्गे মানুষ যা আসে তাই বলতে থাকে। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही हैं। বলছে হনুমানকে তার সামনে গিয়ে তোমরা তার মূর্তিকে বলবে হে পতিত পাवन हनुमान जी। तो पतित पावन काके बोलছে? परमात्माকেই তো বলছে না। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। বলছে অনেক দেবী দেবতা আছে কিন্তু কাউকেই পতিত পাवन বলা হয় না। পতিত পাवन परमात्मा रामকেই বলা হয়। तो कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, तो यह है कौन? वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है।
বাবা বলছেন যে তোমরা আছো খুবই সাধারণ, কিন্তু তোমরা সর্বশক্তিমান ভগবানের মদতগার বাচ্চা। তো তোমাদের কত উঁচু মহিমা আছে সেটা তোমরাই অনেক সময় ভুলে যাও। यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियाँ तुम हो, नाम भी लिया जाता है सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी वह श्रीमती कह देते हैं, वह भी रॉन्ग हो जाता है। বলছেন এখন কেউ শ্রী নয়, কেন কেউ পবিত্র নয়, তো পবিত্রকেই শ্রী বলা হবে। तो अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ बनाओ, ऐसे नहीं कहते लक्ष्मी नारायण बनाओ। বলছে তোমাদের ডিমান্ড কি ছিল যে আমাদেরকে পাবন করো, কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্মী নারায়ণ বানাও, এটা তো তোমাদের ডিমান্ড ছিল না, এটা তো তোমাদের এক্সট্রা পাওনা। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते आकर पावन बनाओ। বাবা বলছেন যে তোমরা কখনো আমাকে এই বলে ডাকোনি যে বাবা এসো আমাদেরকে সত্যনারায়ণের আসল গল্প শুনিয়ে নর থেকে নারায়ণ বানাও। তোমরা শুধু আমাকে এই জন্যে ডেকেছিলে যে তুমি এসে আমাদেরকে পাবন বানাও। तो बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं, तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। বাবা বলছেন তোমার বাড়িতে তোমার আত্মীয় স্বজন আছে, ভাই বন্ধু আছে, মা বাবা আছে, কিন্তু একা তুমি জ্ঞানে চলছো। তো জ্ঞানের এই কথা একমাত্র তুমিই বুঝতে পারছো, অন্য কেউ বুঝতে পারছে না। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। আজকের ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। বলছে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য বাবার যে শ্রীমত পাওয়া যাচ্ছে তার উপরে চলো। दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण করতে হবে। খান পান চলন সব রয়্যাল रखना है, বলছে নিজের খাওয়া দাওয়া চাল চলন খুব রয়্যাল রাখো। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে एक दो को याद नहीं करना है लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। বলছে এক দুজনকে মানে খুব জোরে মনে করো না, কিন্তু সম্মান সবাইকে করো। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है, पावन হওয়ার পুরুষার্থ করো আর অন্যকে করাও। আজকের বরদান सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। বাবা বলছেন যে সকল খাজানা ঈশ্বরীয় খাজানাকে সময় অনুসারে ব্যবহার করো এবং সবসময় নিরন্তর খুশির অনুভব করো, তবে তুমি খুশ নসিব আত্মা হতে পারবে। আর তারপরে এখন ডিটেল আমরা শুনবো। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। বাবা বলছেন যে যে তোমরা ব্রাহ্মণ জন্ম পেয়েছো তখন থেকেই বাপ দাদা দ্বারা অনেক সারা দিনের খুশির খাজানা প্রাপ্ত করছো। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। এই জন্য দেবী দেবতাদের নাম করে ভক্তরা এত খুশি পায়।
आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। বলছে তোমাদের জড়চিত্রকে দেখে ভক্তরা খুশিতে নাচতে শুরু করে দেয়। तो ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। বলছে অনেক খাজানা তোমরা পেয়েছো, শুধু সময় অনুসারে यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ, तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। বলছে যে সবসময় খুশির চাবিকে সামনে রাখো আর স্মৃতিতে রাখো, তাহলে নিরন্তর খুশির অনুভব করতে পারবে। আজকের স্লোগান, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। বাবার শ্রেষ্ঠ আশাকে যারা পূর্ণ করছে তারাই হচ্ছে বাবার কুল দীপক বাচ্চা। ওম শান্তি।